So देखो, so branch and bound. So we can go for the one example, then we can go for the without backtracking. So branch and bound without backtracking. Okay. So I am going to draw the same diagram. Whatever. So I am going to draw the same diagram. Now see, this will be the A, this will be the B, this will be the E, this one D, C, we can match this one, and this one your final goal. The goal is a final, so this one is the final goal. So we can match like this one. Okay, and this one you're starting. So I change the color, the S. S will be your starting, and this one. Now we have to do branch and bound without backtracking. Okay, कैसे perform करेंगे? चलिए. So weight is given like S to S, like 4. This will be the 5. This will be the 3. This will be of 15. This will be the 8. This will be 4. And this will be the again 4, 2, 2, 7. And from here to here, A to D. A to D is a 8. Sorry, A to D is a 8, and this one is a 6. Okay. This one is a 6. Now see, we have to apply branch and bound on the given graph without backtracking. In the previous class, we can see with backtracking. Okay, so we can again explore A and B, then again B to A. Explore किया था ना हम लोगों ने. So how can we perform this one, and how this one is a better one from previous one? So the process how to explore, and these are the edge cost, that's called the heuristic value. So we can calculate the path from S to A. So how much cost to reach from S to A? 4. Then A to E, how much? 4 plus 15, 19. So this way we have been calculating heuristic value. Okay. So now see, the first time is exploring S. So what is the adjacent node A and B? So I can explore A and B. So this side B, and this side I'm putting A. There is no matter of ordering. If you want to put A that side, you can put B at that side, no problem. So this is a graph that I'm exploring. Okay, traversal. So now see. So what is the path cost from S to B is a 5, and then S to A is a 4. Okay. So which of the minimum among A and B? For A, so I am going to explore A again. So again I am going to explore. So what is the adjacent? Now see, I can explore S to A and then S to B. But where I can explore S to A again, S to B and S to E. I again include S to A because A B cannot be exploring from A. तो हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये बैक ट्रैक नहीं हुआ. अगर B को A से देखो, अब देखो जब हम B को एक्सप्लोर करेंगे तो we can go for B to A, लेकिन A से ही तो B आ रहा है, तो हमें इसे बैक ट्रैक नहीं करना है. समझ गया? Same process. So I can perform this operation. So whatever the adjacent node from A to B. Now from A to B, because the first time I can exploring A to B, so that is not a backtrack. Okay. So now A to B, then A to D, then A to E. Okay. Now I am going to calculate the path cost from A to B. 4 plus 3, 7. Okay. 7. Then 4 plus D, how much? 4 plus 8, 12. It will give 12. A to E, how much? 15 plus 4, 19. Okay. Now see, among all the nodes, among all the leaf nodes, now see, अगर हम simple, if you apply the simple DFS and BFS on branch and bound, so अगर simple DFS and BFS करते, तो हम क्या करते थे? हमारा ये एक्सप्लोर हुआ,
इसके बाद जो ये मिनिमम है, उसके बाद यहाँ से जो मिनिमम है उसके बाद और इसके बाद, जैसे ना अगर यही हमारा BFS रहता पहले दोनों, फिर उसके बाद इसको भी एक्सप्लोर करते, फिर ऐसे करके हम लोग लेवल वाइज। नाउ सी, हम डेप्थ फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन गो फॉर द डेप्थ, दैट मीन्स वी कैन एक्सप्लोर लाइक दिस वन, okay, this way we can explore like this way. If you're talking about the breadth first search, okay, so I'm talking about the BFS, my search will be look like this one. So suppose this is the tree, the my search will be look like this one, okay, that is the level wise, that is called level wise, okay, level wise, that is called level wise, okay. तो ये क्लियर होना चाहिए कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में वी कैन सर्च थ्रू द डेप्थ एंड दिस वन इज द लेवल, ओके। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है डेप्थ एंड लेवल वाइज। सो व्हेन वी कैन डिजाइन एनी एप्लीकेशन, दैट मीन्स अ सर्चिंग एप्लीकेशन, so that is the important, we can go for the level wise or depth wise. So basically which algorithm is the best, अगर इन द DFS नॉट BFS, DFS, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है एज इट इज, एंड इसके पास क्या होता है, इसमें स्पेस भी कम लगता है कंपेरिजन टू द BFS, ओके। तो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम यही है डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग। नाउ सी, ओके, so now among all leaf nodes, which one is the smallest? B. So now I am going to explore B. So now B, how many adjacent node of B? Now see, we can explore B to A, B to D, and B to C. B to C. Suppose I am exploring B to A, so that is the backtrack, na? That is the backtrack, because we can get a B through A. We can get we can get a B through A, so that is a backtrack. So this one is the called backtrack. So I am going to mention here backtrack, here the backtrack. So need not to be explore B to A, okay. हम B to A पे एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से ये ले लिया है। तो अगर हम बात करें इस दोनों में से, तो ये तो मिनिमम है, तो ये तो ऐसे हो गया ना, बैकट्रैक हो गया। So this one is the backtrack. So this one is the backtrack, so need not be follow that one, okay. So I cannot explore B to A. So what I am writing, exploring B to A is D and C. D and C. Is it clear? So now see, so what will be the path cost? Calculate path cost. So B to C 5 plus 6 11, and B to C 5 plus 4 9. Okay, clear? Now see, अब देखिए, so among all the leaf nodes, which one is the minimum? C. C is the minimum. So I am going to explore C again, but I cannot explore C to B because this is the backtrack. This is the backtrack. So I am not exploring. So what C to B, I can exploring D, because C to D I can explore. So D and C to G. Now see. So C to D, what is the path cost? 9 plus 4, 13. And C to G, what is the path cost? 9 plus 7, that means 16. Yes or no? So this is, yeah, ठीक है ना, 9 plus G 6 7 16. Is it clear? So now see, this is our goal node. This is our goal node. Okay, this is our goal node. That means I can set bound is equal to 16. That means this is the first solution, but not a optimal solution. तो ब्रांच एंड बाउंड बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है। तो ये हमने 16 आया, सो आई कैन सेट द बाउंड इज 16,
that means I have to discard those leaf node having value more than 16 or equal to 6. आप देखो कौन कौन से हम लोग नोट्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये 19 16 से ज्यादा है तो ऑप्टिमल तो हो ही नहीं सकता। जब हमारा पहला केस में 16 है तो उससे तो ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए 13 ओके नो प्रॉब्लम, 11 नो प्रॉब्लम, 7 नो प्रॉब्लम, 12 नो प्रॉब्लम। ओके नाउ सी if I can explore this one, so I am going to explore among all which one is the minimum. Again B is the minimum, yes or no? B is the minimum na 7, this one. So now here I can get the optimal path, this one. Now देखिए हमें इसके हिसाब से ऑप्टिमल पाथ क्या मिला ये। सो हमें पहला ऑप्टिमल पाथ मिला S to B, B to C and C to goal. That means 16. So I am going to search again the 6 less than 16 पे path available है कि नहीं। So among all which one is the minimum? 7 the minimum. So I am going to explore this one. So B2 again I am going to see the diagram. B to C I can explore, no backtrack. So I can explore this one B to C. हमने B to C को एक्सप्लोर किया। B to A करेंगे नहीं, फिर B to D करेंगे। B to D हमने किया और फिर उसके बाद हमने क्या किया B to C और B to D। दैट इज एनफ, क्लियर ना? B to C ये बैक ट्रैक नहीं हो रहा है ना, हम B to C तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये बैक ट्रैक नहीं होना चाहिए क्योंकि C किसके भी नहीं होना चाहिए। हाँ C to B नहीं होना चाहिए, B to C तो जा ही सकते हैं ना, समझ में आ गया? बैक ट्रैक नहीं होना चाहिए। सो अगेन आई एम कैलकुलेटिंग C to B, this one 7 plus 4 11 and this one 7 plus D how much? That means 13. Okay, so if I can go for this one, so which one among minimum? C ना, तो हम फिर C को एक्सप्लोर करेंगे। तो C को एक्सप्लोर करेंगे तो C से हम लोग G भी जा सकते हैं और C से D भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो C से हमने, अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कार्ड कर देते हैं, ये मैं हटा दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो अब देखिए C से हम लोग कहाँ गए D और C से हम लोग G भी जा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? C से G 18 एंड C to G, इसको अगर हम लोग करते हैं 11 to 13, which one I'm getting? C to G 18 ना, यही ना? C to G C4 11 रहेगा, हाँ C 11 रहेगा, D okay, this one 15, okay, this one 15, this one 18. So if I can explore this one, so no need to get any maximum path। आप यहाँ से मैक्सिमम पाथ मिल रहा है ना 7 को एक्सप्लोर करने से। I can explore this one, then I can get 18. So need to be discard also। तो इसे भी हमें डिस्कार्ड करना होगा। ओके, तो दिस वे वी हैव टू फॉलो। हमें हर बार चेक करना है कि 16 से कम आता है कि नहीं, तो ये हमारा 18 आ रहा है, इसे डिस्कार्ड बस बैक ट्रैक होगा। थोड़ा ही आ गया तो फिर नहीं करना, नहीं सबको चेक करना है ना। तो 18 हो गया, 11 हो गया, सर मैं ये पूछ रहा हूं चेक कर ले। हाँ फिर लास्ट में 16 आ गया, हाँ तो फिर चेक करना है? नहीं फिर नहीं, लेस देन 1 और 16 देना। हाँ क्या हुआ? डाउट है बोलिए। सर वो बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में बी टू डी और सी कैसा है, और लेफ्ट साइड में डी और सी कैसे है? सो वो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं एडजेसेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए बी के साइड में क्या है, सी और डी है, तो हमने इसको सी एंड डी लिख दिया। आप
सी एंड डी इधर भी लिख सकते हैं, डी एंड सी इधर भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट अ ग्राफ, नॉट अ बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। ओके, नॉट अ प्रिडिक्ट लाइक अ बाइनरी सर्च ट्री, जस्ट अ ग्राफ। जो नोट्स को हमें विजिट करना है और सर्च करना है मिनिमम ऑप्टिमल पाथ के लिए। क्लियर? सो बेसिकली हमें ये तो हमारा हो गया, दैट मीन्स ऑल सर्चिंग एल्गोरिथम इज कंप्लीटेड। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है गो फॉर द न्यू चैप्टर लाइक लॉजिकल लॉजिक, दैट मीन्स नॉलेज बेस्ड एजेंट। दैट मीन्स अब आपके पास जो एजेंट होगा, दैट मीन्स एजेंट वट एवर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क, इट हैविंग द सम माइंड। उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करेगा। तो उस प्रिडिक्शन के लिए हम उस एजेंट को ट्रेन करेंगे। सो वी हैव टू ट्राई ट्रेन दैट एजेंट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। ओके, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डीएम में हम लोग ने पढ़ा था ना प्रिडिकेट लॉजिक्स, प्रीपोजिशनल लॉजिक्स। सो हमें फिर से वो पढ़ना है यहाँ पर भी, फॉर फाइंडिंग आउट द आउटपुट। ओके, so that's why computers and discrete mathematics is very important, DM। हो गया? वो सेम ग्राफ था, मैंने आज विदाउट बैक ट्रैकिंग बताया, उस दिन बैक ट्रैकिंग था। तो बैक ट्रैकिंग आप देखना स्पेस ज्यादा हो जा रहा था, यहाँ स्पेस कम है ना। हाँ, हमने बहुत सारे एक्सप्लोर किए थे, यहाँ पे स्पेस कम हो जाते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस। देखिए, चलिए, सो just I'm putting the overview. So knowledge representation representation and reasoning. Okay, the next topic, please don't talk. Next topic is knowledge representation and reasoning. Okay, so inside that what we are going to study, the first one, logic. Okay, so second one we are going to study rules. Then third one we are going to study semantic. Then fourth one we are going to study frame set, frame, and the fifth one we are going to study script. So these terms we are going to train the agent with the help of logic, rules, semantic, frame and script. Okay, और यहाँ पर हम लोग we can use knowledge based agent KB. That means we are the knowledge based agent। हम लोग, हमारे पास नॉलेज है, तो हम लोग नॉलेज बेस्ड एजेंट की तरह काम करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला है कि एआई, तो इसके लिए आपके पास थोड़ा सा पहले से नॉलेज है कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि हम कोई भी वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, सपोज आपको यूएस जाना है, तो थोड़ा सा नॉलेज है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल नॉलेज, लिटिल बिट नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन एक्सप्लोर योर नॉलेज। सो दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड एजेंट। आपको प्रीवियस नॉलेज है, तो नॉलेज बेस्ड एजेंट को, तो मशीन हाउ कैन ट्रेन थ्रू द knowledge based agent? We can use logic, we can use rule, we can use semantic, we can use frame, and we can use script. So anyone can tell me what is the meaning of semantic? So this one is so I want to know what is the meaning of semantic. if फैन ऑफ कर देते तो आवाज सही आता। What is the use of semantic? Sorry, what is the meaning of semantic? आपने ये कभी वर्ड कभी सुना है? के लिए तो सब बंद कर दो ना, बस 15 मिनट्स, नॉट मोर देन। 15 मिनट बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। आपने सिमेंटिक वर्ड कभी सुना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक?
किसी से लगता कुछ, हाँ, किसी कुछ ऐसा लगता है, सेम होना चाहिए सर। no. So did you study compiler designing? Yes. So there is the word syntax and semantic analysis. First is the lexical analysis. Second is the syntax analysis. Third is the semantic analysis. Fourth is the no idea. Intermediate code generations, no pata. Code optimizations and the target. Okay. So if you know the compiler, then you know the meaning of semantic. The semantic meaning is grammatical correct. आपका जो सिंटैक्स होता है, जैसे हमने लिखा इंट ए, तो सिंटैक्स का क्या काम होगा, दैट मींस तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड एजेंट, वो देखिएगा कि दैट इज करेक्ट और नॉट, सिंटैक्स इज अ वर्ड है कि नहीं, इट विल मैच द सिंटैक्स इज अ वर्ड और नॉट, ए इज अ वर्ड और नॉट, ए इज अ वेरिएबल नॉट, बट इफ आई एम राइटिंग इंट ए, दैट इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, जैसे ही इज गोइंग या ही गोइंग, कोई सही है ना। अगर मैं बोलता हूं, अगर आप सिंटैक्स सिंपल सा बात करो इंग्लिश नॉलेज का, तो ही गोइंग ये भी करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है, ये सही है लेकिन ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है। सो वी कैन टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक सिमेंटिक एनालिसिस, दैट मींस दैट कंडीशन इज वैलिड और नॉट, कि जो मैंने काम किया है वो सही है कि नहीं, ऐसा नहीं काम होता है। ओके, सो अगर ऐसा हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो किसी का 90% और किसी का 40% दोनों तो सेम ही होता, लेकिन वैलिड नहीं है ना। 90% is the first one and 40% is the lesser one, that is the third division. So this way, that is the semantic, that is the meaning of semantic, grammatically correct or not in a computer science. Then what is the meaning of logic? So inside the logic we are going to discuss about two terms. So basically we are discussing about the two terms. First one is a prepositional logic. Propositional logic, and second one is predicate. Okay, the second one is a predicate. Okay, the second one is a predicate. So can you tell me what is the prepositional logic and what is the predicate logic? What is the predicate logic and what is the prepositional logic? आपने डीएम आई थिंक कौन से सेमेस्टर में था? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थर्ड सेम में। एज अ कंप्यूटर साइंस आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, एल्गो और डीएम का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिल रहा है, एसडी, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। आप सोचते हो कि ये जो डीएम है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये गलत है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। So prepositional logic, that means we can use different type, nor, and, logical and, or. Yes or no? So we are using this one. Now see, use करते थे ना, if, then if, and predicate logic we can prove that scenario, tautology, contradictions, हाँ, तो वो हम लोग प्रूफ करते थे ना। तो machines we can train with the basis of prepositional logic and predicate. Now what is the rule? So rule, in rule, if, then, else, while, so we can prove through rule. That means these are the terms: logic, learn, semantic, frame and script, to train the knowledge based agent to take a decision. हमें नॉलेज बेस्ड एजेंट को ट्रेन करना है कि वो डिसीजन को ले विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेम्स। आप ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, फ्रेम्स हैं। ओके, जैसे हमने क्या है, एक सोसाइटी डिजाइन किया, सोसाइटी में हमने क्या डिजाइन किया कि एक लिविंग बीइंग के बाद, एक जॉब के बाद उनकी शादी होनी चाहिए, तो वो हमने ये फॉर्मेट डिजाइन किया है, तो इसी फॉर्मेट पे काम करें एग्जैक्ट। आप उस फॉर्मेट से थोड़ा सा भी अलग होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाँ हाँ, आगे प्रॉब्लम हो जाती है ना, एग्जैक्ट। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही है, जो हमने रियल लाइफ में किया है वो यहाँ पर भी किया हमने। ओके, so semantic, that means the grammatical mistake we can go for. So here now, so we can use the semantic net, we can use semantic net.
So what terms? The semantic, that means this one is the meaning grammatical and this net is a graph. That whatever I can draw the graph, that is the meaningful or not. जब हमने ट्रैवर्सल किया, अब देखो कैसे हम लोग इसको नॉलेज बेस्ड एजेंट को बेसिकली जो हम लोगों ने नॉलेज बेस्ड एजेंट पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? सिंप्लेक्स, रिफ्लेक्स, देन सेकेंड वन मॉडल बेस्ड एजेंट, थर्ड वन गोल बेस्ड एंड फोर्थ वन यूटिलिटी. ओके, 4 एजेंट को पढ़ा था. तो ये चारों एजेंट इसी के अंदर आते हैं. तो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो ये हमने लिखा. तो यहाँ पर सिमेंटिक नेट, द मीनिंग ऑफ नेट इज अ ग्राफ and the semantic, that means the rule, that means the grammatically correct or not. Clear? So ये चीजें हैं हमारे पास. So हाँ क्या हुआ? So this is the graph. The meaning of this one net is a graph. So whatever I can draw, I can reach the optimal solution or not. That given graph is complete or not. Okay. Then frame. So we discuss about the slot. Okay. And filtering the attribute. That means object frame. हम फ्रेम करते हैं यहां से. जो ग्राफ क्या हुआ, जैसे मान लो है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपका आईडी नंबर होना चाहिए, आपका फोन नंबर, आपके फादर का नाम, ये. तो दैट वी कैन डिफाइन द फ्रेम. एंड द एडवांस वर्जन, दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट. फ्रेम का एडवांस वर्जन है स्क्रिप्ट. दैट मींस मोर 3 of 5. आपने से और डिस्क्राइब कर दिया ये डेटाबेस के लिए. बेसिकली ये दिस इज फॉर frame and script for the database, so storing the data. Before that we to validate the data before storing. Okay, तो ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक है. लॉजिक, रूल्स, सिमेंटिक नेट, फ्रेम एंड स्क्रिप्ट. ओके, सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग. दैट मींस नॉलेज बेस्ड एजेंट. हम लोग बेसिकली बात करेंगे नॉलेज बेस्ड एजेंट. ओके, सो in the first chapter, I can discuss now one problem, vacuum cleaner. जब हमने introduction part किया था, so we can describe one environment and then we can discuss one simple agent, vacuum cleaning. If room is dirty, then go for the left, like a stuff like this one. So that is a very important question. Okay, so on the basis of they will ask you questions. कि अगर आपके पास एक vacuum cleaner है, how can it work in a real environment? उसकी आप लिखो, स्टेप लिखो, प्रोसेस लिखो. दैट मीन्स अगर डर्टी है तो स्टॉप होना चाहिए, अगर डर्टी नहीं है तो लेफ्ट मूव करना चाहिए कि राइट मूव करना चाहिए. ये आपको, दैट मीन्स वी कैन डिफाइन द सिनारियो, डिफरेंट सिनारियो. जब कभी भी जैसे मान लो यू कैन डिजाइन अ रोबोट, इफ यू गेट द ऑब्स्टेकल देन व्हाट यू हैव टू परफॉर्म. दैट इज अ क्वेश्चन ना. अगर मान लो कि आप ऑब्स्टेकल आएगा तो कैसे पता चलेगा कि एक मशीन को भी ऑब्स्टेकल है? एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा बताइए? यूज करने के बाद. मशीन का ये तो कैसे, मशीन को कैसे पता चलेगा यूज करने के बाद? जस्ट दिस वन इज मशीन और ये मूव करना है और अचानक से मैंने हैंड रख दी, इसको कैसे पता चलेगा कि ऑब्स्टिकल है? कि मुझे जैसे ही ऑब्स्टिकल आया तो आई शुड टेक अ लेफ्ट कि आई शुड टेक अ राइट, आई कैन गो फॉर द बैक. बताइए. सो आपने जब हम लोग बचपन में थे, जब मेरे टाइम में तो एक टॉय आता था एरोप्लेन वाला, जो नीचे टर्न करता था, उसमें म्यूजिक रहता था और वो चलते रहता था. जहां पे ऑब्स्टिकल होता था वो घूम जाता था. वो कैसे? दैट इज द क्वेश्चन ना. हाउ कैन मशीन कैन अंडरस्टैंड वी हैव टू टेक अ लेफ्ट और राइट? सो वही कंडीशंस. सो दैट इज द एनवायरनमेंट वी हैव टू क्रिएट द एजेंट. वही आपको क्रिएट करना है. सो वही आपको क्रिएट करना है. अब ऑब्स्टेकल को आप क्या लेते हो? तो अगर हम वैक्यूम क्लीनर का बात करते हैं कि वी कैन टेक ऑब्स्टेकल एज अ डर्टी. इफ यू फील द डर्टी एलिमेंट्स आर देयर, वहां पे डर्टी गंदगी फैली हुई है, तो हम उसे क्या करेंगे? ऑब्स्टेकल के रूप में लेंगे. तो आप तो वैक्यूम क्लीनर को ये नहीं ना बोलोगे दैट इज ऑब्स्टेकल. वहां पे हाइट होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ नहीं. वहां पर क्या होगा वैक्यूम क्लीनर के ऑब्स्टेकल? भाई गंदगी होगी ना, गंदगी में कुछ भी हो सकता है. वैक्यूम क्लीनर के ऑब्स्टेकल तो वही होगा ना. भाई कहाँ बैठे हो? ओके, तो वैक्यूम क्लीनर के लिए वो हो गया. तो उसी तरह डिफरेंट एजेंट हैविंग डिफरेंट ऑब्स्टेकल. अगर हम मैकेनिकल रोबोट की बात करते हैं तो वो रियल टाइम से वो होंगे. ओके, रियल टाइम से ऑब्स्टेकल होंगे. जो हाइट्स होंगे, रोड्स होंगे, गड्ढे होंगे, वो उनके लिए डिफाइन होगा. वैक्यूम क्लीनर के एनवायरनमेंट के बेसिस पे
So first we decide the environment, then decide the obstacle. On the basis of we apply the work of the agent. ये हम लोग डिसाइड करते हैं. Clear? Okay. So from the next class, so I think that I can start the logic representation and reasoning after mid-sem या before mid-sem. क्योंकि ये पूरा अलग टॉपिक है, इसमें सर्चिंग नहीं लगेगा. यहाँ पे आपका आ जाएगा CSP का कॉन्स्टेंट बेस्ड सर्चिंग का वो सब प्रोग्राम, ये आउटपुट आने वाले हैं इन सब में. सो ओके, नो प्रॉब्लम. आई कैन डील विद द स्मॉल लाइक प्रोपोजिशनल लॉजिक बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडी प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट. ओके, so before starting the logic you should go for the prepositional logic and predicate knowledge. तो आपके लिए इजी होगा कि टोटोलॉजी क्या है, कॉन्टिजेंसी कौन है, कॉन्ट्राडिक्शंस कब होता है. टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? What is the meaning of tautology? Tell me. What is the meaning of tautology? At least English meaning तो बताओ. अगर English meaning पता हो. ये कहाँ से आप लोगों ने tautology का मतलब इक्वल है? यार देखो तो किसी ने मैसेज किया T for all, that means true for all. ट्रू और इक्वल में डिफरेंस नहीं है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है. So tautology that means mean true. Statement 1 is true and 2 is true and both are true. And contradiction, yeah, anyone online? I mean that is the correct. Yeah, false for all, false for all. And concept क्या contingency क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते. ओके, जिसमें हम लोग ना ट्रू आ रहा है ना फॉल्स आ रहा है, तो वो हमारा हो गया. सो टोटोलॉजी एंड क्या मैंने बोला, एक और कॉन्ट्राडिक्शन. हाँ, तो वो चीजें हमें रखनी है, याद करनी है इसमें. प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट. तो बेसिकली आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, टुडे इज अ रेनिंग या टुमारो विल बी रेनिंग, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने डीएम में सॉल्व किया होगा. सो बेसिकली वो इसके अंदर आते हैं, प्रीपोजिशनल लॉजिक के अंदर. और बहुत सारे हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे. सो इसके बारे में आपको जैसे इनवर्स प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं. इन सब चीजों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा. इफ P tends to Q, then it cannot P is not union to Q. That is the standard format. कि इस चीज को हम लोग कैसे लेते हैं. ओके, then machine will be convert this same thing than this one. ओके, मशीन को भी हमें सिखाना होता है कि भाई अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि वो P में ना हो लेकिन Q में हो सकता है. So this way we can represent. So all the times we can, when we are writing a code, we can follow this one. जब हम लोग एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं, that means like a Google, that means a Google Map, तो वो सब में ये सब यूज होते हैं प्रेडिक्ट लॉजिक. जब हम लोग सर्च बेस्ड एल्गोरिथम जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं आप, गूगल सर्च में हम बहुत सारे मैथ्स के फंक्शन यूज करते हैं जहाँ पर प्रिस्क्राइब करने के लिए. एक जैसे कि हम लोग कोई सर्च करते हैं ना, मैंने आपको बताया था एक बीम एल्गोरिथम. So what is the benefit of beam? If someone asks what is the use of beam, yeah, online, can you tell me what is the use of beam? Beam, BEM, not a beam. Okay, beam. So anyone online? बीम एल्गोरिथम का यूज क्यों करते हैं हम लोग? भाई ऐसे हाल कैसे रहेगा? So basically, if we define the beam, that means we can define the beta. मैंने बोला था ना बीटा. देखिए AI का प्रॉब्लम यही है, ये चीजें अगर आप क्लास मिस करेंगे तो इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे. So all the things are related to each other. So you can discuss about the beam beta that is related to the beam algorithm. If I can fix the beta 2, that means it can be take only 2 points. अगर हम वर्ड की बात करें तो कितने लेटर लेगा? 2 लेगा. अगर I can fix the beta 4, so कितने लेटर लेगा? 4 लेगा. Suppose I can fix the beta 2, it can explore only 2 branches, not more than 2 branches. तो बीटा जो बीम एल्गोरिथम है, we can use for the NLP और सर्चिंग के लिए. जैसे आपने देखा, आप कोई भी सर्च करो, कोई पटांग सर्च करो जिसका कोई मीनिंग नहीं है. सपोज ABCDQRS लिख दिया आपने, अब इंटर किया, तो गूगल ने क्या किया है, उन्होंने सर्च को लिमिट कर दिया है
कि अगर 3 वर्ड आता है, सपोज आप मीनिंग नहीं समझ पाते हो, वो सिमेंटिक एनालिसिस करता है। अगर वो मीनिंग नहीं समझ पाया थ्रू आउट, तो वो क्या करेगा, बीम एल्गोरिथम लगा के स्टार्टिंग के 2 लेटर या 3 लेटर से रिलेटेड सारे सर्च को दिखा देगा। ठीक है? So we can use semantic analysis and beam algorithm both. And before that we can use genetic algorithm also. देखिए, एक सर्च के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। हमने एक ओवरऑल क्या लगाया, जेनेटिक एल्गोरिथम, उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिथम लगाने के बाद सिमेंटिक एनालिसिस किया, उसके बाद हमने बीम लगाया। दैट मीन्स फॉर क्रिएटिंग अ वन एनएलपी नॉलेज वी कैन डू सिमेंटिक, जेनेटिक एल्गोरिथम एंड बीम एल्गोरिथम। तो ये होता है। आपने गूगल लेंस यूज किया ना, वो क्या करता है, वो बीम सेम जेनेटिक एल्गोरिथम और बीम एल्गोरिथम पे ही वर्क करता है। ओके, सो विवेक प्रेजेंट, कैन यू टेक अटेंडेंस एंड सेंड मी? ओके।